تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی فضل کرم احسان ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج جمعہ کے دن یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے سامنے میں چند آیت مبارکہ تلاوت کی اور چند احادیث مبارکہ، جن کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی آپ کے سامنے مفہوم بھی بیان کیا جائے گا۔ اور ہمارا جو اسلامی مہینہ ہے اس کی ابتدا ہو چکی ہے، یعنی دیکھا جائے تو ہمارا اسلامی مہینہ جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم سٹارٹ ہو گیا، اور اب تو جو آتا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے، آج پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جیسے پچھلے سال 1445 ہجری اور اب پہنچے 1446 ہجری میں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو بہرحال اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس وقت کو روکتا نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ بس 30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد جو کیلنڈر چینج کرنے والا ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ 40 سال کے بعد کیلنڈر چینج کرنے والا میں نہیں رہوں گا۔ اس سال میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ اگلے 100 سال کے بعد تو کنفرم ہے کہ میں کیلنڈر چینج نہیں کروں گا۔ یہ سمجھ لینا چاہے کہ نہیں، کہ بس یہ ایام جو ہے میرے جا رہے ہیں۔ بہرحال آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہے اور تلاوت جو حدیث مبارکہ ہو رہی ہے، تو ان کا مفہوم کیا ہے، جو خلاصہ ہے وہ سارا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نچوڑ کیا ہے، وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق۔ چند آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، تو اخلاق جو ہے اسلام میں جس کو کہہ سکتے ہو آپ کہ یہ اسلام کا پھل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ اسلام کو سمجھ لو کہ ایک پیڑ کی طرح ہے، تو جڑیں جو ہے اس کا عقیدہ ہے، شاخیں جو ہے وہ اس کے احکام ہے، جیسے حلال ہے، حرام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ کیا اس کے احکام ہے، جو اس کی شاخیں ہیں۔ اور اب جو پھل نکلے گا اس سے یہ سمجھ لو یہ اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ تو جیسے ہمارے یہاں اگر درخت لگائے جاتے ہیں، درخت کی جڑ جو ہے دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے شاخیں بھی دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے اس درخت کا، اگر اس درخت کا مقصد وہ ہم سے حاصل نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اس درخت کو نکالیں گے اور پھینک دیں گے کہیں، کہ چونکہ جو ہمیں اس سے اصل مقصد ہے، یعنی اس کا جو پھل ہے وہ ہمیں محسوس ہونا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، وہ پھل ہمیں مل نہیں رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس درخت کو نکالیں گے، کاٹیں گے، دفع کریں گے اپنے باغ سے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنا پھل جو ہے دے نہیں رہا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو لگایا وہ ہمیں دے نہیں رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس درخت کو کہیں گے کہ ہمارے پاس بیکار ہے، اس کو نکال لیں۔ تو اسلام میں بھی جو ہے فار ایگزامپل جو ہم نے کہا کہ اسلام میں جو جڑیں ہیں وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے، یعنی ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو بھی سارے عقائد ہے وہ کیا اس کی جڑ ہے۔ اسلام میں سمجھو کہ درخت ہے، علماء کرام نے جو فرمایا کہ یہ سمجھو ایک قسم کا درخت ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اب جو شاخیں ہیں، جیسے ہم نے جو ہے روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال، حرام کیا ہے وہ ہم نے سمجھا یہ اس کی کیا ہے؟ شاخیں ہیں، جس کو ہم برانچز کہہ سکتے ہیں، تو یہ اس کی شاخیں، لیکن اس کا جو پھل ہے اسلام کے بعد آپ نے اسلام میں داخل ہو گئے، آپ جو اسلام کے احکامات پر چل رہے ہو، جو اس کا پھل ہے وہ ہے اخلاق۔ کیا ہے؟ اگر ہمیں وہ اخلاق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر جو اسلام چاہتا ہے کہ اس کے اندر اخلاق ہونے چاہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جو مقصد ہے وہ ہم سے فوت ہو رہا ہے۔ اگر میں مومن ہوں لیکن میرے اندر اخلاق نہیں ہے، اخلاق میرے پاس نہیں پائے جاتے، تو ظاہر سی بات ہے جو پھل ہے وہ ہمارے پاس آئی نہیں۔ تو اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو مقصد تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کی گواہ اور ایک حدیث ہے، میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اسی کے لیے بھیجا گیا، یعنی مجھے مبعوث اسی وجہ سے کیا گیا کہ میں مکارم الاخلاق کو کیا کر لوں؟ کمپلیٹ کر لوں، مکمل کر لوں، یعنی تکمیل مکارم الاخلاق، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق کی جو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اس میں ذرا توازو دیکھ لیجیے، اس حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بُعِثْتُ لِأُعَلِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یہ نہیں فرمایا کہ میں سکھانے کے لیے بھیج گیا ہوں، بلکہ کیا لِأُتَمِّمَ، تاکہ میں کمپلیٹ کر لوں۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس اخلاق ہی نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، تھے لیکن ان کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے اگر آپ دیکھ لو گے بہت سارے مقاصد ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پائے جاتے ہیں، جیسے آپ نے توحید کو دینا، آپ کو دعوت دینی ہے، چاہے جو بھی کام کرنے ہیں، لیکن ان اخلاق میں سے یعنی جو بھی کام آپ کو سپرد کیے گئے تھے ان میں سے ایک بڑا جو کام ہے وہ ہے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ کیا ہے کہ جو اخلاق ہے
جو اخلاق ہے ان کو مجھے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے, ان کو کمپلیٹ کر لینا ہے مجھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ایک چھوٹی سی صورت ہے, سب کو ہماری زبان پر ہوتی ہے, جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها. کامیاب کون ہوگا؟ جس نے اپنے اخلاق درست کیے. 11 قسمیں مسلسل پوری قرآن مبارکوں کا اگر آپ مطالعہ کرو گے تو کہیں آپ کو 11 قسمیں نظر نہیں آئیں گی کہ بیک ٹو بیک قسمیں کھائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ کس لیے کھا رہے ہیں؟ کہ تاکہ جو آخر میں جو بات آ رہی ہے اس کو آپ کو غور سے سمجھنا ہے اور اس پر آپ کو عمل کر لینا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں ایک ہی صورت میں مسلسل. والشمس وضحاها ایک تو سورج کی, اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها ایک تو اس کے بعد جو ہے چاند کی. والنہار اذا جلا دن کی. واللیل اذا یغشاها اور رات کی. چاہے جو بھی دیکھ لو آپ, 11 قسموں کے بعد اللہ کو جو بات کہنے ہمیں کتنی توجہ ہونی چاہیے؟ بہت زیادہ توجہ نہیں. ایسے بھی کوئی اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی نا, ہمیں تو ویسے ہی ایمان ہے نا, لیکن یہ قسم اسی وجہ سے کھائی جاتی ہے تاکہ جو بات آ رہی ہے اس کو آپ غور سے ذرا سمجھ لو, متوجہ کرنے کے لیے, تاکہ ہم متنبہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. ورنہ اللہ ہمیں تو سب کو ایک نا, اللہ صادق ہے, اللہ تو سچا ہے. یہ ہمارا ایک اللہ بچائے, کسی کے اندر اگر ذرہ برابر اس میں شک ہو تو کافر ہے کہ نہیں. لیکن جو بات کہنی ہے 11 قسموں کے بعد, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی, وہ کہا قد افلح من زکاها, وہ کامیاب ہو گیا جس کے اخلاق درست ہو گئے, جس نے اپنا تزکیہ کیا, جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو جس نے اپنے جو اندر جو ہے برے اخلاق تھے ان کو دور کے اچھے اخلاق لائے, اچھے اخلاق لائے. تبھی تو اللہ تبارک, اللہ کے نبی جو بھی ہم نے پڑھی تھی نا آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کس وجہ سے بھیجا گیا؟ تاکہ میں جو اخلاق کو کمپلیٹ کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعد میں سرٹیفکیٹ بھی ملی کہ نہیں, جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا آپ نے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے, اور آپ کو میری طرف سے جو ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم, آپ کے اخلاق تو اب سب سے اعلیٰ ہے, وہاں تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا, وہاں کوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم, چونکہ اخلاق جو ہے وہ دین کے, میں نے بھی کہا دین کا کیا ہے, وہ پھل ہے. اگر میرے پاس درخت ہے وہ پھل نہیں دے گا تو میں اس کو اکھاڑ کر پھینک دوں گا, باغ سے دفع کر دوں گا. کیوں؟ یہ پھل ہی نہیں دے رہا, جس مقصد کے لیے میں نے لگایا ہے اس کو وہ اس میں پایا ہی نہیں جاتا, مفقود ہے, اٹھا دو, اکھیڑ دو اور دفع کر لو اس کو باغ سے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ہمیں کہا کہ آپ کے اندر جو ہمارے مقصد تھا وہ تھا آپ کے اخلاق درست ہونے چاہیے. آپ کے پاس چلو عقیدہ بھی ہے, چلو احکامات بھی ہیں, آپ حلال حرام کو جانتے بھی ہو, لیکن آپ کے اخلاق درست نہیں ہو رہے ہیں. ہمارا تو الگ معاملہ ہے دنیا میں کہ ہم اس چیز کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں, دفع کر دیتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا چلو میں آپ کو مسلمانوں سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹک دیتا ہوں, نہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈیل دے رہا ہے کہ نہیں, آپ کو جو اصلی مقصد ہے اس کو ذرا حاصل کر لو, اس کو ذرا حاصل کر لو. تو یہ اخلاق جو ہے اسلام کی کیا ہے اصل میں, یہ میں نے کہا جس کو پھل ہم کہہ سکتے ہیں. آج کے دور میں دیکھ لو آپ کہ بہت سارے بہتان ہیں, جیسے فار ایگزامپل بہت سارے فقدان ہیں. فار ایگزامپل سیاسی فقدان بھی ہے ہمارے پاس بہت جگہ ہے, یا معاشی فقدان بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاقی فقدان بھی ہے. لیکن ان تمام فقدانوں کو اگر آپ جمع کر لو گے, جو نہیں پائے جاتے, جو بحرانات ہمارے سامنے ہیں, ان میں سے ایک ہی جگہ ہر جگہ آپ کو ملے گی, وہ ہے کہ اخلاق کی فقدان کی وجہ سے یہ سارے جو اخلاقیات ہمارے اندر سے نکل گئے ہیں. بعد میں چاہے سیاسی فقدان ہو یا کوئی اور فقدان ہو, اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے, اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اخلاق نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی زیادہ تاکید کی کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے, تاکہ زجر و توبیخ کے لیے اس وجہ سے فرمایا تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمیں متنبہ کر رہے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا, یعنی جس نے اس امت میں کسی کو بھی دھوکہ دیا, فلیس منا, وہ اس امت میں سے نہیں ہے. کتنی تاکید کی, کتنا متنبہ کیا کہ نہیں, آپ کے اندر اخلاق ایسے ہونے چاہیے, چاہے آپ کسی بھی جگہ ہو, کہیں بھی ہو, لیکن آپ کے اخلاق درست ہونے چاہیے. نہیں اخلاق درست ہے, آپ نے کسی کو دھوکہ دیا, اپنے مسلمان بھائی کو دیا یا کسی غیر مسلم کو ہی دیا,
تو फलैस मिन्ना, वो हम में से ही नहीं है, मुसलमानों में से नहीं है, मैं उसको अपनी उम्मत में से ही शुमार नहीं कर रहा हूं। क्या अपनी उम्मत में से ही? किस वजह से? कि अखलाक आपके दुरुस्त नहीं है, अखलाक आपके दुरुस्त नहीं है। जिस फील्ड में भी देख लो, हमारे यहां जहां भी कमी पाई जाती है, आप अगर उसको सबसे पहले जितना भी रिसर्च कर लोगे, तो रिसर्च करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि बंदे के अंदर अखलाक दुरुस्त नहीं थे, दावत का काम बिगड़ गया। बंदे के अंदर यह नहीं था तो मस्जिद का माहौल बिगड़ गया। बंदे के अंदर यह काम नहीं था, उसके अंदर अखलाक अच्छे नहीं थे, तो माहौल जो है तालीम का बिगड़ गया। चाहे जहां पर भी हो, माशरे में जो है ये बेहयाई फैल रही है कि अखलाक नहीं है, वालिदैन के अखलाक दुरुस्त नहीं है, बच्चों के अखलाक कैसे दुरुस्त हो जाएंगे? उस्ताद के अखलाक दुरुस्त नहीं है तो उसके स्टूडेंट जो है, उसके शागिर्द जो है, उनके अखलाक कैसे दुरुस्त होंगे? नहीं होंगे ना। तो जाहिर सी बात है, जहां पर भी जिस फील्ड में भी आप देख लोगे, सबसे मेन चीज क्या है? अखलाक हमारे अंदर दुरुस्त होनी चाहिए। इसी को कुरान ने बार बार मैंने कहा ना, 11 कसमों के बाद जो कसम, ये जो बात कहनी है, वो क्या कहा? कद अफलहा, वो कामयाब हो गया, मन ज़क्का। दूसरी आयत में भी फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, कद अफलहा मन तज़क्का। अच्छा, मकसद ही यही कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, जो सूरह जुमा में हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। आयातिही के बाद फरमाया व युज़क्कीहिम, और उनको अखलाक सिखाए। उसके बाद व युअल्लिमुहुमुल किताब, या इसी एतबार से जो सूरह अल्लाह तबारक व तआला के एक महबूब जो नबी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसी दुआ की कि अल्लाह इनमें से एक रसूल भेज दे जो इनको तज़किया करे, इनके अखलाक को कंप्लीट कर ले, इनके अखलाक को सिखाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारा प्रैक्टिकली दिखाया ना, हमारे सामने सारे उनके वाकयात है, आपने कैसे लोगों के साथ बर्ताव किया, आपने कितनी यानी ज्यादा तालीम दे दी इसके लिए, बल्कि मकसद ही बताया कि मेरी नबूवत का जो है लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। और उम्मत में जो अखलाक का फुकदान है, जो आजकल हम रो रहे हर जगह कि वहां इत्तेहाद नहीं है, यहां ये नहीं है, तो आप जरा देख लो, उसको गौर फिक्र करके लास्ट में आपको यही पता चलेगा कि बंदे जो है उसके अखलाक दुरुस्त नहीं थे, जिसकी वजह से सारा माहौल जो है बिगड़ गया, जिसकी वजह से मस्जिद का निजाम है वो बिगड़ गया, क्योंकि उस बंदे के अखलाक दुरुस्त नहीं थे। और जाहिर सी बात है, अगर आपको इतना ही सिर्फ बताया जाए ना कि किसी बंदे के अखलाक दुरुस्त नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाइज है, आपके पास कोई खतीब है, खुतबा दे रहा है, लेकिन आपको यह कहा गया कि नहीं, ये बंदा जो आपके सामने खुतबा दे रहा है इसके अंदर अखलाक ठीक नहीं है, अखलाक ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो उसकी जुबान का असर होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपको कि बंदा जो है चलो हमारे सामने तो अच्छी नसीहतें कर रहा है, खुद इसके अंदर कुछ पाया नहीं जाता है, तो चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, या कोई और हो, चाहे बाद में कोई खतीब ही क्यों ना हो, कोई भी प्रोफेसर क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें यह पता चला इसके अखलाक दुरुस्त नहीं है, तो हम अपने बच्चों को उसके पास तालीम सीखने के लिए भी नहीं भेजेंगे, है कि नहीं? ये हमारा मिजाज है कि नहीं? चाहे दुनियावी तालीम हो, असरी उलूम हो, या ये दीनी उलूम हो, दोनों तालीम को हम रोकेंगे। किस वजह से? कि इस बंदे के पास क्या नहीं है। हम कहेंगे नहीं, फलानी बंदा जो है सबसे ज्यादा डॉक्टरी किया हो उसने उस सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स में किया हो, किसी में या किसी और सब्जेक्ट में महारत हासिल किया, लेकिन जिस टीचर के पास आप भेज रहे हो उस बंदे के अखलाक दुरुस्त नहीं है, उस बंदे के पास अखलाक दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमारे इलाके में सबसे ज्यादा माहिर वही टीचर है, हम भेजेंगे अपने बच्चे को? भेजेंगे? क्यों नहीं भेजेंगे? हम कहेंगे कि बड़ी वजह क्या है, चाहे इसके पास जितना भी इल्म हो, जितने भी किताबें इसने पढ़ी हो, लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से हम इसके पास नहीं भेजेंगे, इसके अखलाक दुरुस्त नहीं है, इसके अखलाक दुरुस्त। चाहे फॉर एग्जाम्पल हमारे मस्जिद का इमाम साहब हो, हम कहेंगे कि कारी साहब है, सभा कारी है, इसने इफ्ता किया, इसने काजी कोर्स किया, मौलाना कोर्स किया, सारे कोर्स करके रखे हैं, और लेकिन बंदा अगर आप इसके पास किसी को भी पढ़ने के लिए भेजोगे, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए, लेकिन इसके अखलाक दुरुस्त नहीं, हम अपने बच्चों को भेजेंगे? तो जो मैंने ये भी कहा था स्टार्टिंग में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो इस्तुलियुतम्मिम मकारिमल अखलाक, या जो अभी हमने मिसाल में समझाया था कि असल में जो इस्लाम का जो फल है वो क्या है? अखलाक है। तो जाहिर सी बात है जब हम देखेंगे इसके अंदर तो वो फल पाया ही नहीं जाता है, तुम अपने बच्चों को क्यों सीखेंगे इल्म हासिल करने के लिए उसके पास? बड़ी वजह जो मैंने अभी कहा कि अखलाक इंसान के दुरुस्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? उसके बाद जब इंसान के अखलाक दुरुस्त होते हैं, और आजकल के दौर में तो कोई बात छुपी हुई नहीं है, बड़ी वाज़ेह होती है, अगर हमारे पास जो सबसे ज्यादा पिकअप कर लेते हैं बच्चे, चाहे छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, हमारे अंदर जो भी
फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्शन हम कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे उसको लेते हैं, चाहे जितनी भी हम अपनी जुबान से नसीहत कर ले उसको नहीं लेते हैं, लेकिन हम जो करते हैं उसको लेते हैं। हम जो करते हैं उसको कभी भी देख लेना, अगर हमने अपने बच्चों के सामने कभी फोन किया तो बाद में आप देखोगे कि मेरा बच्चा जाते वक्त या कभी चुप कर देख लो आप, वो फोन ऐसे ही लगा के रखा होगा या कुछ भी उठाया होगा और उसको ऐसे ऐसे कर रहा होगा। वजह क्या? कि बच्चा जो है वो कैच वही कर लेता है जो हम कर लेते हैं। तो हमारा बच्चा जो है हमारी जुबान को नहीं देखता, हमने उसको उसके सामने बड़े अच्छे लेक्चर दिया, हमने उसको बहुत ज्यादा सिखाया, वो उसको नहीं लेगा, वो देखेगा कि मेरा बाबा कर क्या रहा है, मेरी अम्मा कर क्या रही है, या मेरा दादा कर क्या रहा है, मेरी दादी कर क्या रही है, उसको लेगा वो आपकी जुबान को नहीं लेगा। ये दुनिया का उसूल है। एक छोटा बच्चा जब आपके अखलाक को देखकर उससे लेगा, उससे कुछ कैच कर लेगा, तो हमारी जुबान तो बाद में कुछ नहीं काम देगी ना उसको। तो आज के दौर में या किसी भी दौर में जब तक कि अखलाक हमारे दुरुस्त ना हो तो हमारा जो भी आप फील्ड देख लोगे वहां पर हमारी कभी भी दुरुस्तगी नहीं आएगी, कभी भी दुरुस्तगी नहीं आएगी। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद-दीन नसीहा, दीन तो है ही खैर खाई, यानी कि आपके अंदर अखलाक ही अच्छे होने चाहिए। खैर खाई तो तभी आप करोगे ना जब आपके अंदर अखलाक अच्छे होंगे। आपके अंदर अखलाक अच्छे नहीं है तो आप कहां से खैर खाई करोगे? नहीं ना। तो यही जो है इस्लाम का मकसद है कि हमारे अंदर सबसे बेहतरीन अखलाक होने चाहिए, तब हम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तब हम, हालांकि देख लो तिजारत हो या कोई और मसला हो, अगर हमारे अंदर जो है कोई धोखा देने की आदत है तो जाहिर सी बात है हमारा तिजारत ठप हो जाएगा। क्यों? कि पता है नहीं इसके अखलाक दुरुस्त है या ये वादा खिलाफी करता है। इसको कोई चीज मांगो और कहेगा इसकी गारंटी है, बाद में कहेगा नहीं गारंटी नहीं थी, मैंने ऐसे ही कहा था। आजकल हर चीज की गारंटी दी जाती है और ये नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका जो भी तिजारत होगा उसके बुरे अखलाक की वजह से वो भी ठप हो जाएगा कि नहीं। हर फील्ड में, चाहे हमारे घर में कोई काम हो, जहां पर भी हम बद अखलाकी करेंगे तो वहां पर जाहिर सी बात है उसका एक्शन तो जरूर हो जाएगा, रिएक्शन उसका जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो मुसलमानों की जो बदहाली का असल मेरे ख्याल से आज दिन ये जो है ना आज के दौर में जो पाया जाता है कि हम जो है बहुत डूबे हुए हैं, हम जो है जिल्लत में जा रहे हैं, बड़ी वजह जो है वो ये है कि इनके अंदर अखलाक नहीं है, धोखा दे रहे हैं बहुत ज्यादा। जिस भी फील्ड में देख लो, जहां पर भी देख लो, इनके अंदर अखलाक नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की मदीनतुल मुनव्वरा में तो वहां के लोग जो आपकी तरफ माइल हो गए, आपने वहां दावत का काम वहां पर स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा था, जो उन्होंने उनके साथ मुआहदे किए थे, पहला मुआहदा यह था कि आप अपने दीन पर अमल कर लो, हम अपने दीन पर अमल कर लेंगे। यह कहा था, यह नहीं कहा था कि नहीं हम आपको दावत देंगे, नहीं, उनको पता था कि हम अखलाक दिखाकर जो है इनको माइल कर लेंगे अपने इस्लाम की तरफ, हम कर लेंगे इनको माइल। और वही वजह बनी कि वहां के जो यहूदी थे, एक तरफ से वहां के जो मुशरिकीन थे, और वो देखते थे कि यहूदी के पास हम जाते हैं, उनकी दुकान पर कोई चीज भूल जाते हैं तो वो नहीं देते हैं, लेकिन मुसलमान के पास जाते हैं, उनके दुकान पर कोई चीज भूल जाते हैं, वो दौड़ दौड़ कर पीछे आ रहे हैं, आप चीज भूल गए, आपने फलानी चीज यहां पर रख ली, आपके पैसे यहां पर रह गए। और जिसकी वजह से वहां के जो मुशरिकीन थे, चाहे जो भी थे वहां उस दौर में, तो उन्होंने कहा नहीं, ये वाला जो यहां पर जो ये हमारे पास ये मुसलमानों का जो तबका है, इनके अखलाक बहुत ही आला है, हमें चाहिए कि हम इनकी तरह माइल हो जाए। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जज भी बनाया गया था उस मुआहदे में कि नहीं, आखिरी फैसला हमारे नबी अलैहि सलाम सुनाएंगे, ये भी कहा गया था। इस पर उन्होंने बाज़ाब्ता साइन भी किए थे यहूदियों ने भी, चाहे बनु कुरैज़ा हो, बनु नज़ीर हो या बनु कैनुका हो, उन सब ने इस पर क्या किया, साइन भी किए कि नहीं हम मान रहे हैं, लेकिन हमने जो है नबी अलैहि सलाम ने इस पर भी साइन किया, हम आपको अपने दीन की तरफ अभी नहीं दावत देंगे, क्योंकि आपको पता था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत की थी सहाबा की, आपको पता था इनके अखलाक देखकर ये खुद ब खुद माइल हो जाएंगे इस्लाम की तरफ। हमारे अखलाक देखकर तो गैर मुसलमान शर्मा जाते हैं, तो गैर मुस्लिम के पास हम अपने अखलाक बयान ही नहीं कर पाते हैं कि कैसे हैं। आजकल अब क्या कहेंगे, हमारा चूंकि इलाका ही मुसलमानों का है, यहां पर अगर जहां भी जाओगे तो पहले मालूम किया जाता है कि कहां पर फलानी हिंदू है, वो धोखा नहीं देगा। उसको पता है कि मेरा जो मुसलमान भाई अभी इतना धोखा देने वाला बन गया, अब उस पर भरोसा उड़ गया। और ये सिर्फ, अब हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा मुलाजिम है वो धोखा देता है, यहां इस दौर में एक छोटा मजदूर भी धोखा देता है, और वहां से लेकर चाहे बड़े से बड़ा मुलाजिम तक हो, वहां तक सारे धोखा देते हैं। किसी भी पटरी वाले के पास जाओ, आपकी नजर एक
सर यानी 1 सेकंड के लिए अगर वहां से टल गई ना, तो आपके जो लिफाफा होगा उसमें सारा कुछ जो है गंदा भरा होगा, चाहे फिर मेवे हो या कोई भी चीज सब्जी हो, वो बाद में आपको घर पर पता चलेगी जब आप वहां देख लोगे। तो ये अखलाक क्या, वहां पर ये पीएम के अखलाक थे? वो पटरी पर कौन था? मजदूरी था ना। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हमारी उम्मत में से ही नहीं है ना। वही तो है ना, जब अखलाक ऐसे पाए गए कि एक मुलाजिम के अंदर, एक मजदूर के अंदर अखलाक ऐसे पाए गए, और बाद में हम यही रोना देते हैं कि क्या हमारी सियासी हालत जो है ठीक नहीं है, हमारी सियासी हालत। और ये कभी नहीं कह रहे कि इसके जिम्मेदार हम हैं, हमारे अखलाक खुद बिगड़ गए हैं, मेरे अखलाक खुद बिगड़ गए हैं। मैं धोखा देता हूं, मैं मजदूर होकर धोखा दे रहा हूं, मैं मुलाजिम होकर धोखा दे रहा हूं, या मैं बैसत एक खतीब देकर धोखा दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है तब तो है फिर तो इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन इसका होगा ना, होगा कि नहीं? तो ये मेन चीज है इस्लाम में, जो भी हमने समझाया कि इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी वजह से मुझे इस दुनिया में मबूस किया गया कि जो मकारिमुल अखलाक है उसको मैं पूरा कर लूं। और कोई भी दाई, चाहे इस्लाम का दावत देने वाला हो, इसके अंदर भी ये सलाहियत जरूर होनी चाहिए कि इसके अंदर सबसे अखलाक आला होने चाहिए। कोई भी बंदा आपको ये देखकर नहीं कहेगा कि इस बंदे ने कौन सी बात की, वो आपके अखलाक को देखकर समझेगा कि नहीं ये बंदे ऐसे काम कर रहे हैं, हाँ इस अखलाक को देखकर वो कैच करेगा, नहीं ये ठीक है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। आपने कुरान का वाक़या सुना होगा, अहसन अल क़सस, जिसको कुरान में कहा गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। मैं शॉर्ट में उसको बयान कर लेता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बेगुनाह साबित किया गया, जब उसके बादशाह ने वो ख्वाब देखा था कि वो जो है 7 उसने मोटी गायें 7 कमजोर गायें देखी थी, वो खा रही है उनको। उसके बाद जब उन्होंने कहा था कि एक ताबीर बताने वाला है, जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंदा गया था उसका वहां पर उसके बाद बादशाह ने एक कहा था उसको छोड़ दो आप। किसको? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दो आप। अब जो है चूंकि उसने ताबीर अच्छी बताई और उसने वहां से जो हमें मशवरा भी बेहतरीन दिया कैसे आप बचाओगे इस कहत से अपनी कौम को। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकले नहीं। उसकी बड़ी वजह थी, उन्होंने कहा कि चूंकि मुझ पर इल्जाम लगा, मेरे अखलाक पर जो है बात आ गई है, मेरे अखलाकियात पर बात आ गई, मुझ पर इल्जाम लगाया, नऊजुबिल्लाह इसके गलत ताल्लुकात है किससे, इसने ज्यादती की जुलेखा के साथ, मेरे केस पर नजरिसानी कर लो, जब तक मैं बेगुनाह साबित ना हो जाऊं तब तक मैं यहां से नहीं निकलूंगा। हम होते तो हम क्या कहते, अरे छोड़ो बादशाह ने क्या पता नहीं इसका मूड होगा बाद में कि नहीं होगा, पहले निकल जाते हैं बाद में देख लेते हैं केस को। यही करेंगे ना, हमारा हाल यही है, आपका भी यही होगा मुझे लगता है, लेकिन मेरा हाल यही होगा। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, नहीं पहले मेरे केस की नजरिसानी कर लो, इसमें देख लो मुझे बेगुनाह साबित होना है, क्योंकि मुझे करना क्या है, दावत का काम करना है। मुझे अल्लाह बचाए आपको दावत का काम करना हो, आप पर इल्जामात हो तो आप दावत का काम कर सकते हो, नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो वही कहा ना, पहले जो मुझ पर इल्जाम लगा है उसको साफ कर दो, उसके बाद मुझे दावत का काम करना है। क्योंकि कल को अगर मैं किसी के पास दावत का काम करने के लिए गया और मैंने उसको दावत दे दी, उसने वहां से कहा आपने फलाने टाइम में गंदा काम नहीं किया था, वो तो पूरे मोहल्ले को मालूम हो गया था, तो आप हमें दावत सिखाने आ रहे हो, आप हमें दावत दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है हमें बाद में शर्मिंदगी होगी। तो यही वजह थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा पहले मेरे केस की क्या कर लो, नजरसानी कर लो, क्योंकि मेरे अखलाकियात पर जो है अटैक हो गया, पहले उसको साफ कर लो, क्लियर कर लो, उसके बाद मैं दावत का काम स्टार्ट करूंगा, जेल से तब मैं निकलूंगा, जब तक मेरे केस की नजरसानी। उसके बाद जुलेखा को बुलाया गया और जुलेखा ने कहा नहीं बेगुनाह है, मेरी गलती है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद यही है, निकाला गया और उसके बाद उन्हें दावत का काम स्टार्ट किया। तभी तो उसके बाद उसको वहां का मिनिस्टर भी बनाया गया। बड़ी वजह यह थी कि उसके पास थे क्या, अखलाक थे, क्या थे, अखलाक थे। जब जुलेखा ने ये वहां पर ये कहा नहीं सबसे ज्यादा भरोसेमंद अगर कोई बंदा वो कौन है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। किस वजह से कहा, अखलाकियात की वजह से ना। आपने उनके अखलाक देखकर तो कहा ना, आपको पता था ना मैंने इसको गलत काम की तरफ बुलाया, लेकिन अपने आप को महफूज किया, इसके अखलाक बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तभी उसने यहां से मशवरा दिया बादशाह को अगर आपको बनाना ही हो कुछ तो ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो बंदे के अंदर अगर अखलाक दुरुस्त होंगे, उसका दावत का काम भी आसान होगा, उसका बिजनेस का काम भी आसान होगा, उसकी पढ़ाई अगर वो पढ़ाने वाला होगा तो उसका काम वो भी दुरुस्त होगा। जो भी काम उसको करने, पहली बात उसके अंदर अच्छे अखलाक होने चाहिए, हत्ता कि मजदूर के अंदर भी ऐसे काम होने चाहिए। हमारे इलाकों में ऐसा नहीं होता कि पहले मालूम कर लेते कि ये बंदा कैसा है, हमने मजदूर लाना है, इसके अखलाक कैसे है, इसकी नजरें ठीक है कि नहीं, इसका हाथ साफ है कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा वहां से, अगर हाथ साफ ही कर लेगा हम उस बंदे को लाएंगे बाद में,
अगर हमारे यहाँ महसूस हो गया, हमें पता चला कि कोई बंदा चलो मजदूरी का काम ही कर रहा है, लेकिन मजदूरी का काम करने के साथ साथ और भी जो है गलत काम इसके साथ है, इसके अखलाक ठीक नहीं, हम तो उसको मजदूरी पर भी नहीं ले सकते ना। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अखलाक दुरुस्त नहीं है। एक दिन की मजदूरी के लिए भी नहीं ला सकते, बड़ी वजह। उसके बाद अगर हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं तो बाद में हम कहेंगे लास्ट वाला ऑप्शन जो है अब यही बचा, अब लाएंगे। लेकिन पहले हम यही कोशिश करेंगे बंदा हमारे पास वही आना चाहिए जिसके पास सबसे आला अखलाक हो। तो इस्लाम का जो मैंने कहा मकसद है वो क्या है कि हमारे अंदर अखलाक सबसे बेहतरीन होने चाहिए, तब हमने जो है कोई भी काम कर सकते हैं। मैंने कहा तब हम पढ़ भी सकते हैं, तब हम दावत का काम भी कर सकते हैं, तब हम बिजनेस भी कर सकते हैं, तब हम सियासत में भी आ सकते हैं, तब हमारी माशत भी जो है वो भी ठीक हो सकती है। लेकिन ये तब हो जाएगा जब हमारे अंदर अखलाक दुरुस्त होंगे। क्या होंगे? इसी को कुरान ने बयान किया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने जो अंबिया को भेजा उसका मकसद भी यह था कि जो इंसान है उनके अखलाक दुरुस्त हो, उनके अखलाक दुरुस्त हो। क्या हो? बल्कि हदीस में अल बिर्रु हुस्नुल खुल्की, नेकी जो है वो अच्छे अखलाक है। क्या है? अच्छे। और एक हदीस मुबारक में जो वो है कि कयामत के रोज जब नामे आमाल तोले जाएंगे तो सबसे वजनी अमल जो होगा वो अच्छे अखलाक होंगे। क्या होंगे? अच्छे अखलाक। तो हमारे अंदर कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए हमारे अंदर कि नहीं, अखलाक हमारे दुरुस्त होने चाहिए। जब हमारे अखलाक दुरुस्त होंगे तो तब हम कयामत के रोज जाए जो भी हमारे अमाल हो तो वो वजनी तभी होंगे ना, तभी वजनी होंगे जब अच्छे अखलाक होंगे। तो मेरे अंदर अच्छे अखलाक में से एक अमल यह भी है कि बंदा जो है बुरे कामों से, जो बेकार के काम है उनसे दूर रहे, जो बेकार के काम है उनसे क्या रहे? दूर रहे। ये मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी जिसकी उसको जरूरत नहीं है। हमारे यहां देख लो, हमें जो काम भी आता है हम कभी अगर बेकार होंगे तो हम जो है गलत कामों में लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? उसकी बड़ी वजह क्या होती है कि जब हमारे पास कोई टाइम होता है तो शैतान बाद में वसवसे डालता है, शैतान बाद में वसवसे डालता है। तो हमारे पास टाइम बचना ही नहीं चाहिए इनके लिए कि गुनाह हम कर सके। इस वजह से अपने आप को हमेशा मशगूल रहना चाहिए, अपने आप को रखना चाहिए, नेक अमल में रखना चाहिए। नहीं हम नेक अमल में मशगूल हो तो किसी दुनियावी काम में लग जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अगर हम सीरत मुबारक का मुताला करेंगे तो उसमें जो हमने मिलते हैं कि बहुत सारे इशारे, क्या बल्कि पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक जो है उसमें यही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक की वजह से लोग उनकी तरफ माइल हो गए। जैसे मदीनतुल मुनव्वरा में आपने दावत का काम स्टार्टिंग में ये चालू नहीं किया था, लेकिन जब आपने उनको अपने अखलाक दिखाया तो मदीना के जो भी मुशरिकीन थे वहां के वो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे और हर एक मुसलमान की तरफ कि नहीं हमें जो है आप कलमा पढ़ाओ। बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने उनके अखलाक देखे थे। तो हमारे अंदर जो है मुसलमानों के अंदर चूंकि ये जो है एक बहरान ये भी है कि हमारे अंदर अखलाक दुरुस्त अब नहीं रहे। हालांकि हमारी मिसाल दी जाती थी, आपने बेशुमार वाक़या पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि पिछले दौर में या हमारे इस कश्मीर में ऐसी खानकाहें बनी थी कि लोगों को जो है वहां पर उन खानकाहों में बिठा बिठा कर उनके अखलाक दुरुस्त किए जाते थे। तब जो है उनको बाद में मैदान में भेजा जाता था कि अब आप दीन का काम कर लो। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ये तरबियत सहाबा को भी की थी, जिसकी वजह से सहाबा को बाद में भेजा दावत के काम के लिए। लेकिन पहले आपने उनको तज़किया खुद से किया, वयुज़क्कीहिम, उसके बाद वयुअल्लिमुहुमुल किताब। अच्छा, कुरान ने भी जो देखो पहले आपने क्या कहा बयान, वयुज़क्कीहिम, पहले उनका तज़किया कर लो, अखलाक दुरुस्त कर लो। जब इनके अखलाक सब दुरुस्त होंगे उसके बाद का वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अब उनको इल्म सिखाना है, अब इनको इल्म सिखाना है। हमारा वैसे उसूल क्या होना चाहिए, पहले इल्म, लेकिन अवाम के लिए पहले इनका तज़किया कर लो, पहले इनके उलमा के लिए पहले इल्म हासिल कर लो, उसके बाद अखलाक भी दुरुस्त कर लेने। जो अभी हमने कहा कि बगैर अखलाक के जो है समझो बगैर फल के ही है ये इंसान। जो इस्लाम का फल है वो क्या है, अखलाक है ना। तो अगर किसी बंदे के अंदर अखलाक नहीं है तो समझो कि ये बंदा तो जो दरख्त है इसके अंदर फल नहीं है, इसके अंदर फल नहीं है। तो इस फल की वजह से जो है इंसान जो है दावत का काम कर सकता है। तो अभी हमने कहा कि कुरान में जो बयान किया कि पहले इनका तज़किया कर लो, पहले अवाम का अखलाक दुरुस्त कर लेना है, उसके बाद इनको सिखा वयुअल्लिमुहुमुल किताब। अब उसके बाद इनके अखलाक जब दुरुस्त हो जाएंगे उसके बाद इनको किताब सिखाओ। हमारे ना तो हम किताब सीखते हैं और ना ही हम अपने अखलाक दुरुस्त कर लेते हैं, और ना ही हमने फिक्र ली है, और ना ही हमने कभी इरादा भी रखा है।
हमने इरादा भी नहीं रखा कि अपने अखलाक दुरुस्त कर लेंगे या अपना तज़किया कर लेंगे या हमारे अंदर ये खामियां, मेरे अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, ये कभी बीमारियां हमें नजर आई ही नहीं, चूंकि हमने अभी अपने आप को कभी भी स्कैन किया ही नहीं कि कभी हम तोले कि मेरे अंदर है क्या मेरे अंदर अखलाकियत की कमी है, क्या मेरा सब्र है, क्या कभी मेरा सब्र का जो लबरेज होता है वो कभी टूट तो नहीं जाता है, या कभी जो है मेरे अखलाकियत पर जो है बात होती है तो कहीं मैं जाती तो नहीं कर लेता हूं या फौरन गुस्सा तो नहीं होता हूं। जितने भी सारे अखलाकियात है इनको पहले हम खुद को स्कैन कर लेना है कि कहीं ये बीमारियां मेरे अंदर तो नहीं है, अगर है तो इनका इलाज मुझे फौरन करवा लेना है। इनका इलाज मुझे, जैसे मुझे नमाज के मुताबिक मुझे 2 मिनट के लिए साह हो गया, मैं मालूम कर लेता हूं किसी आलिम दिन से कि नहीं यहां पर साह हो गया, मेरी नमाज दुरुस्त है या नहीं, तो ऐसे मुझे अखलाकियात के लिए भी खासकर जो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंसान किसी अल्लाह वाले की सोहबत हासिल कर ले, इंसान किसी अल्लाह वाले की सोहबत हासिल कर ले तो उसमें जो है मैक्सिमम अखलाक जो है दुरुस्त होते हैं। आपने यहाँ कश्मीर में हमारे भी जो खानकाएं लगी हुई थी, तो पिछले दौर में जो यहाँ पर खानकाएं लगी हुई थी, जहां पर भी जाते हैं वहां खानका यहाँ खानका, तो वहां पर जो बुजुर्गान दीन थे वो इनको यही अखलाक की तालीम देते थे। आपने सुना होगा बड़े बड़े उलमा को जो है कभी कभी उनकी तरबियत करने के लिए उनको जो है पेशाब साफ किया जाता था, उनको कहा जाता पेशाब साफ करो या वो काम कर लो, ये इस वजह से कि चूंकि इनके अंदर जो है अन्नायत आती थी, अगर इनके अंदर ये अन्नायत निकल जाएगी तो बाद में जो है ये कोई भी काम कर सकते हैं। आज अगर मैं यहां पर हूं, मुझे कोई कुछ कहेगा तो मैं कहूंगा देखो इसने हमारी गुस्ताखी कर ली। हमें अपने अखलाक जो है अब इतने दुरुस्त नहीं है कि अब हम दावत के काम में भी बाद में हमें मुश्किलें होती है, इसी वजह से कि चूंकि अखलाक दुरुस्त नहीं होते। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जब आप देख लोगे कि आपको नऊजुबिल्लाह ये कहा जाता था कि ये मजनून है। हमें अगर कहेगा कोई दावत के काम पर कि फलानी बंदा मजनून है, पागल है, ये दावत का काम हमें सिखा रहा है, हमें पता नहीं है, तो हम कितना गुस्सा होते हैं कि नहीं, पागल कहा इसने, हम अब तो हम इसके पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन नबी अलैहि सलाम बार बार भी जाते थे, है कि नहीं, हालांकि आपको सर्टिफिकेट मिली थी वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और उस शख्स के मुतल्लिक जो कायनात में सबसे आला, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी अजमत वाली, उसको कह रहे हैं क्या कि ये नऊजुबिल्लाह क्या है, मजनून है। और अखलाक देखो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी यहां से उसके मुतल्लिक कुछ नहीं कहा, ये है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल खुद यहां पर मैं हूं वाइज, मैं खतीब हूं, मैं मौलवी हूं यहां पर, या कोई भी डिग्री मैंने की, बाद में मुझे कोई कहेगा अरे आप जाहिल हो, तो जाहिर सी बात है मैं तो गुस्सा हो जाऊंगा ना, क्योंकि ऐसे अखलाक तो भी हमने सीखे नहीं है ना कि चलो इसने मुझे जाहिल कहा। और अगर किसी जाहिल को भी जाहिल कहते ना वो भी नहीं मानता है, उससे भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि नऊजुबिल्लाह क्या ये मजनून है, जिसको कुरान ने भी जवाब में वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये मजनून, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने तो रद्द किया, लेकिन इतना है कि आप अलैहिस्सलाम ने सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया। ये अच्छे अखलाक की बुनियाद से, जिसको हमने स्टार्टिंग में कहा था बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे इस वजह से भेजा गया ताकि जो अखलाक की जो तकमीली है वो मैं खुद कर लूं, यानी इसको कंप्लीट मैं खुद कर लूं, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में सर्टिफिकेट भी दे दी। तो हमारे अखलाक भी कम से कम दुरुस्त होने चाहिए, और इसकी शाखें बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस्लाम की जड़ें जो है वो अकीदा है, और इसकी शाखें जो है क्या है, अहकाम है। अहकाम यानी नमाज, रोजा, ज़कात है, और इसका फल जो है वो क्या है, अखलाक है, जिसको उलमाए किराम ने बयान किया है। तो अगर हमारे अंदर ये सारे है, अकीदा भी ठीक है, और उसके बाद नमाज, रोजा, ज़कात सारा ठीक है, अहकामात भी हमने सीखे हैं, लेकिन अब हमारे अंदर वो फल भी निकलना चाहे जो इस्लाम हमसे चाहता है, वो क्या है, अखलाक भी हमारे अंदर अच्छे होने चाहिए, जो मकसद है असल में इस्लाम का। तो अल्लाह तबारक व तआला वो ये सुनने और बोलने के साथ साथ हमें अमल करने की तौफीक अता